الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آج کی ہم لوگوں کی یہ مجلس افتتاحی مجلس ہے۔ افتتاح عالمہ کا نصاب کا آج جو ہے یہاں افتتاح کیا جا رہا ہے جامعہ محمد بن عبداللہ میں۔ یہ پہلا اتفاق ہے۔ آج 9 بچیوں پر ایک جماعت مشتمل ہے جن کو عالمہ کا کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بہشتی زیور، یہ کتاب ہے بہشتی زیور جو بہت ہی جامع معنی اور بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھے ہوئے کتنے عرصے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ کتاب اتنی مقبول ہے کہ ہر مدرسے میں، مکتب میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ہر مسلمانوں کے گھر میں یہ کتاب لوگ رکھتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ خاص کر انہوں نے اس کتاب کو لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے لکھا ہے، اور اس میں بہت مسائل ہیں اور بہت ساری حکمت کی باتیں بھی ہیں، اور کھانے پکانے اور بہت ساری چیزوں کو بنانے سے متعلق بھی چیزیں اس میں حضرت نے تحریر فرمائی ہے۔ تو بچیاں، آپ کے پاس جو کتاب ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو ہٹا کے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ آپ لوگ کے پاس جو کتاب ہے درسی بہشتی زیور، اور ہمارے پاس جو بہشتی زیور ہے یہ اختری بہشتی زیور ہے۔ اس کے 11 حصے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے کچھ چھانٹ کے آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب درسی بہشتی زیور سامنے لائی گئی ہے تاکہ بچیوں کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس میں ہر سبق میں سوالات بھی ہیں، اس لیے ہر سبق کو غور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ خود سے جو ہے اس میں جو سوالات ہیں اس کو حل کر سکیں۔ تو آج کی یہ مجلس افتتاحی مجلس ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، یہ 3 سال 4 سال جو بھی ایک نصاب عالمہ کا ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک خیر و خوبی کے ساتھ یہ 9 بچیاں جو ہے 9 کے بجائے 10 ہو، 12 ہو، 20 ہو، جو بھی ہو، لیکن کم نہ ہو۔ آپ لوگ اس جذبے کے ساتھ آج سے شروع کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ عالمہ مکمل ہونے تک دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کورس کو پورا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ جامعہ میں پہلی بار جو ہے یہ بچیوں کے لیے عالمہ کا کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ آج کی مجلس سے مبارک مجلس ہے، تو پہلے بہشتی زیور سے شروع کیا جا رہا، اس کے بعد فارسی کی 2 کتاب، اس کا بھی آج فارسی کی پہلی اور تفسیر المصادر، ان دونوں کتاب کو بھی آج جو ہے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آج لوگ غور سے سنیے، آج 2-3 مسائل جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے۔ پہلا ہے عقیدوں کا بیان۔ کیا ہے پہلا؟ عقیدوں کا بیان۔ آپ لوگ کی کتاب میں کیا ہے؟ عقیدوں کا بیان۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، ایک مسلمان کے لیے عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ کا تعلق دل سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ دل سے۔ بعد اسلامی احکام جو اللہ کے احکام ہیں اس کو ہم ہاتھ پیر سے ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ پیر دل دماغ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اس میں بھی کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔
لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ یہ عقیدہ اگر کسی مسلمان کا صحیح نہ ہو تو جتنا بھی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تلاوت کر لے، جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، پھر وہ بیکار ہے۔ اس لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز، روزے، جتنے بھی عبادات ہوں کام نہیں آئیں گے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے بنیادی چیز کو سب سے پہلے بتلایا جا رہا ہے، عقیدوں کا بیان۔ نمبر 1 دیکھیے، عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ یہ عقیدہ نمبر 1 ہے۔ عقیدہ نمبر 1 میں یہ بتلایا گیا کہ تمام عالم یعنی تمام دنیا میں، یہ پوری دنیا ہم نہیں دیکھے ہیں، اس کے علاوہ زمین کے نیچے اور 7 زمین ہے، آسمان 7 ہیں، تمام کائنات کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کے بارے یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ سب پہلے کچھ نہیں تھی۔ یہ سب پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ رات و دن، نہ ہوا، پانی، دریا، کچھ نہیں تھا۔ یہ کچھ ہے، پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ عقیدہ پہلا یہ رکھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ چاند، سورج، ستاروں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رات و دن کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہوا، پانی، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ 7 آسمان کے نیچے تارے اتنے چمکتے ہیں، سب دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، اس سب کو کون بنایا؟ اللہ بنا۔ تو یہ عقیدہ ہم کو پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ جس کائنات میں، جس عالم میں، جس دنیا میں ہم ہیں، اور اس عالم کے علاوہ بھی الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتے ہیں ہم لوگ، عالمین تمام عالم کا، تمام کائنات کا رب اللہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو کتنے عالم ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے 80,000، کسی نے 40,000 عالم یعنی دنیا بتایا۔ تو ہم تو ابھی ایک ہی دنیا کو پورا نہیں دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کتنے ایسے کائنات بنائے ہیں، تو سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ پہلا عقیدہ ہم لوگ کو یہ رکھنا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہم لوگوں کو رکھنا ہے۔ اب جو ہے عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ بہت ہی کانٹے کی بات ہے اس میں۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ کہاں رکھنا ہے؟ دل میں، ہے نا؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، اور وہ اللہ ایسا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کام میں بھی کسی کا محتاج وہ نہیں ہے۔ زمین آسمان جو بھی بنایا، چاند سورج، انسان جنات، سارے مخلوق کو بنایا، تو وہ بنانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ بھی کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک چیز میں ہم لوگ محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کام کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ناتی، یہ سب اللہ اس سب سے پاک ہے۔ اللہ کو بیٹا بیٹی کی حاجت نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے، اللہ کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اب ہم لوگ کے دماغ میں آتا ہوگا کہ کیسے ہیں؟ ہم لوگ جو بھی دنیا میں آئے ہیں، ہم لوگ کے کوئی ماں باپ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اور بڑے ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے تو آل اولاد بھی سب کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور اللہ کا بھی کوئی بیوی نہ بچے کوئی نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو انسان سوچے گا ہی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ نظام ماں باپ کا بنایا ہے، اس لیے ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔
ये माँ बाप का निजाम कौन बनाया है? अल्लाह बनाया है। अल्लाह तो अकेला है, तन्हे तनहा है, वो किसी की हाजत उसको नहीं है, न बीवी की हाजत, न बच्चे की हाजत, न और किसी चीज के, उसको वो मोहताज ही नहीं है। इंसान है तो उसको औलाद की जरूरत होती है ना सहारा के लिए, बीवी की हाजत है, बीवी है तो शौहर की हाजत है ना। लेकिन अल्लाह की जात वो है जो किसी का ही मोहताज नहीं, उसको किसी की जरूरत ही, समझ में आ रही बात? ये माँ बाप का निजाम ये अल्लाह हम लोगों के लिए बनाया, अल्लाह इस सब से पाक, और उसके कोई मुकाबिल का भी नहीं है, उसके मुकाबिल का कोई नहीं है कि नहीं अल्लाह ताला के बराबर का भी कोई है आदमी, कोई जो है कोई और जात है जो किसी चीज में अल्लाह का साथ दे, ऐसा नहीं है, अल्लाह का कोई मुकाबिल नहीं। नंबर 3, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह क्या है? हमेशा से है और अल्लाह हमेशा रहेगा। हम लोग को भी जहन में आता है हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। हम लोग तो आए हैं 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो अल्लाह कैसे? ये सब हम लोग के लिए ऐसा अल्लाह ने निजाम बनाया है कि तुमको कुछ दिन यहाँ रहना है दुनिया में, उसके बाद चले जाना है, तुम हमेशा हमेश के लिए यहाँ नहीं हो। हमेशा हमेश रहने वाली जात तो अल्लाह की, वो हमेशा से है, उसको कोई बनाया नहीं है। हम लोग को कोई बनाया तब हम लोग आए, है ना? हम लोग को अल्लाह ने पैदा किया तब हम लोग दुनिया में आए, तो अल्लाह को किसी ने कोई बनाया नहीं है, वो तो हमेशा से है और वो उसको कोई खत्म भी नहीं कर सकता है। हम लोग तो खत्म हो जाएंगे एक दिन, दुनिया सारी की सारी खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह को कोई खत्म भी नहीं कर सकता है, समझ गए कि नहीं? तो अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह कब तक रहेंगे? हमेशा रहेंगे। ये 3 अकीदे जो है आज पढ़ाए गए, ठीक है? इसका माना मतलब पूछा जाएगा आप लोगों से आइंदे, इसको अच्छा से पढ़ के आइएगा, बाकी किताब निकालिए। फारसी की पहली निकालिए। पता नहीं था, लेके आ जल्दी। दुआ तो पढ़ा दी गई है, अब किताब शुरू किया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब फारसी की पहली किताब है ना, फारसी की पहली किताब इसका नाम है। फारसी ये एक जबान है, क्या है ये? जबान। जैसे उर्दू जबान, बांग्ला जबान, ये सब है ना, कोई बांग्ला में बात करते हैं, कोई उर्दू में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करते हैं ना, कोई अरबी में बात करते हैं, कोई और जबान में बात करते हैं। हर एक इलाके की अलग अलग जबानें हैं, हर मुल्क की अलग अलग अपनी एक जबान है। तो हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ की जबान पहले फारसी थी। क्या थी? फारसी। पहले उर्दू जबान यहाँ नहीं थी, पहले क्या थी? फारसी जबान थी यहाँ की। तो फारसी एक जबान है, फारसी एक जबान। तो फारसी आप लोग सोच रहे हैं क्यों पढ़ाई जा रही है, हम लोग तो उर्दू बोलते हैं। तो ये जबान, उर्दू जबान जो हम लोग बोलते हैं ना, इसमें बहुत सारे अल्फाज फारसी के, बहुत सारे अल्फाज फारसी। हाँ, तो उर्दू में माहिर होने के लिए, कमाल हासिल करने के लिए फारसी का जानना भी जरूरी है। इसलिए थोड़ी बहुत आप लोग को फारसी पढ़ाई जाएगी, फारसी की पहली किताब पढ़ाई जाएगी, तहसीलुल मसादिर, ये 2 किताब सिर्फ फारसी की पढ़ाई जाएगी, उसके बाद फिर अरबी की किताबें पढ़ाई जाएंगी।
तो हर जबान का कुछ उसूल और ज़ाब्ता होता है ना। तो फारसी जबान के भी उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। तो तरीक़ा वो सब तफसीरुल मसादिर में आप लोग को कुछ बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अभी इसमें भी कुछ क़वाइद उसके बताए जा रहे हैं। एक बात दिमाग में बैठाइए, गौर से सुनिए। जो भी अल्फाज, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम जबान से बोलते हैं, उसको लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अब कायदा बताया जा रहा है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, है ना। जो भी हम जबान से बोलते हैं वो लफ्ज है। अब लफ्ज की दो किस्में होती हैं। एक होता है लफ्ज मानादार होता है, एक होता है कोई बगैर मानादार। जैसे क्या बोलते हैं? रोटी वोटी दे दो ना, बोलते हैं ना, रोटी ओटी। रोटी का तो माना मतलब समझ में आया, है ना, लेकिन ओटी उसे क्या माने? कोई माना नहीं है उससे, है? झाड़ू वाड़ू लगा दो, तो झाड़ू तो समझ में आ रहा, वाड़ू क्या है? बोलते हैं ना। तो एक लफ्ज है मानादार और एक है उसका माना नहीं है, बेकार, बेकार लग, टोपी ओपी, ओढ़नी ओढ़नी, कपड़ा उपड़ा बोलते हैं ना हम लोग। तो बहुत सारे जो हम जबान से अदा करते हैं अल्फाज, उसमें कुछ मानादार होते हैं और कुछ बगैर माने के होते हैं। कुछ मानादार होते हैं और कुछ बगैर माना, बगैर मतलब, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। तो जो मानादार लफ्ज हैं उसके, वो तो अरबी में जाएंगे तो उसके अक़साम आएंगे, लेकिन यहाँ मैं समझा दिया कि लफ्ज जो हम निकालते हैं जबान से, उसके दो तरह के, एक है मानादार लफ्ज है और एक है बगैर मानादार, है ना। मानादार क्या है? रोटी मानादार है, वोटी कोई मानादार नहीं। तो यहाँ जो किताब में बता रहे हैं, लफ्ज मानादार की दो किस्में, जो लफ्ज हम लोग निकालते हैं मानादार, उसकी दो किस्में। कितनी किस्में हैं? देखिए, लफ्ज मानादार की दो किस्में हैं। उसके ऊपर लिखा है मुफरद व मुरक्कब। उसके ऊपर क्या लिखा है? मुफरद व मुरक्कब। तो मुफरद और मुरक्कब को अभी सिर्फ बताया जाएगा आपको। लफ्ज मानादार की दो किस्में हैं, अव्वल मुफरद, दो मुरक्कब। लफ्ज जो हम निकालते हैं उसकी कितनी किस्में हैं? एक मुफरद, एक, दो नाम याद रखना है, मुफरद और बोलिए, 3 मरतबा बोलिए सब। मुफरद और मुरक्कब, मुफरद और, हाँ। तो मानादार लफ्ज जो हम जबान से निकालते हैं उसकी कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। अब मुफरद किसको कहते हैं? देखिए आगे, मुफरद वो लफ्ज है जो अकेला हो। मुफरद वो लफ्ज है जो अकेला हो और जिससे एक माना समझे जाएं, जिससे एक माना समझे जाएं। हाँ, जैसे जैद, जैसे क्या है तुम्हारा, क्या नाम? अफीफा। जैसे अफीफा, ये फातिमा, इरफा, मरियम, और क्या, अदीबा, सादिया, शबाना, ये सब मुफरद है। ये सब क्या है? किसी एक लफ्ज जो निकाले, एक चीज को बतलाए, एक चीज को बतलाए जो अकेला ही हो। शबाना बोलने से 2 समझ में आएगा, 3 1 समझ में आएगा, है ना। किसी का भी नाम ले लिया तो उससे एक ही समझ में आएगा। सही से बैठो। तो जो एक माना को बतलाए और अकेला हो, उसको क्या कहेंगे? मुफरद। तो तुम लोग सब जो नाम किसी का भी लेगी, वो लफ्ज क्या होगा? मुफरद होगा। क्या होगा? रोटी क्या है? मुफरद। चावल क्या है? मुफरद। समझ में आ रही बात? कलम क्या है? मुफरद। चश्मा क्या है? मुफरद। पंखा क्या है? मुफरद। ट्यूबलाइट क्या है? मुफरद। ये सब क्या है? मुफरद। देखो समझ में आ गया? मुफरद अकेला है,
और एक माना को बतला रहा है, ये क्या है? मुफरद। समझ में आ गया ना? तो मुफरद वो लफ्ज है जो अकेला हो और जिससे एक माना समझे जाए, जैसे जैद, जैसे कलम, जैसे चश्मा, जैसे कुर्ता, जैसे टोपी, जैसे और भी तिपाई, जो भी ले लो एक, वो क्या है? मुफरद है। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो, मुरक्कब वो है जो दो कलमों या ज्यादा से मिलकर बना हो, जैसे जैद का गुलाब। मुफरद तो एक अकेला रहेगा और एक माना ही को बताएगा, लेकिन मुरक्कब दो कलमों या ज्यादा से, दो कलमों या, देखो कलमा यहाँ आ गया, ऊपर में लफ्ज था। लफ्ज और कलमा एक ही चीज है, लफ्ज और कलमा एक ही चीज, याद रख इसके। और अरबी जब पढ़ेगी तो कलिमा उसमें लग जाएगा। अल कलिमतु लफ्जुन उज़िअ लिमानन मुफरद, यहाँ लफ्ज बोला ना फारसी में, अरबी जब पढ़ोगी तो उसमें आएगा अल कलिमतु लफ्जुन उज़िअ लिमानन मुफरद। कलिमा वो लफ्ज है जो एक माना को बताए, अरबी में आएगा। तो बहरहाल एक माना को बताएगा, उसको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे बोलो, जो भी, ये सब क्या हो गया? मुफरद हो गया। और मुरक्कब वो है जो दो कलमों या ज्यादा से मिलकर बने, दो या ज्यादा से मिलकर बने। जैसे इसको कलम, मेरा कलम, या इसका शबाना का कलम, इसका क्या नाम है? आफिया का कलम, आफिया का कलम। कलम सिर्फ नहीं हो रहा, आफिया का भी नाम आ रहा, आफिया का कलम। तो दो हुआ ना, आफिया एक हुआ और का कलम दो हुआ ना, तो आफिया का कलम। तो इस जो बोले हम, इसको क्या बोलेंगे? मुरक्कब। सिर्फ कलम बोलेंगे तो क्या होगा? मुफरद। और अगर हमने कहा कि आफिया का कलम, तो ये क्या हो गया? समझ में आ गया? ये किताब, ये क्या हुई? कि मुरक्कब है? समझ में आया ना? और इसको हमने कह दिया अफीफा की किताब, तो क्या हो गया? क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ा के हम बोल दिए अफीफा की किताब अच्छी है, तो दो से भी ज्यादा हो गया, अच्छी बढ़ गया। अच्छी बढ़ा कि नहीं? अरे तीन लफ्ज हो गया ना। तो भी ये क्या होगा? दो या ज्यादा से मिलकर बने, उसको क्या कहेंगे? एक है तो मुफरद, और दो या ज्यादा से मिलकर बने, दो लफ्ज या ज्यादा से, दो कलमा या ज्यादा से, तो उसको क्या कहेंगे? समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत है? मुफरद जो एक माना को बतलाए, अकेला हो, जैसे किताब, कलम, तिपाई, है ना? जैसे आफिया, फीफा, जो भी है, शबाना, दिबा, ये क्या हो गया? मुफरद। उसके साथ अगर कुछ मिला दे, रोटी क्या हो गई? मुफरद। रोटी और दाल क्या हो गई? हो मुरक्कब। चावल क्या हो गया? चावल और दाल, सब्जी क्या हो गया? समझ आ गया? तो जो एक माना को बताए वो मुफरद, और एक से ज्यादा को बताए वो क्या हो गया? समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा लग रहा पढ़ने में? किताब के क्या नाम है? तस्हीरुल मसादिर, सबक नंबर 1। देखिए मसदर का बयान। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने, मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। फारसी में मसदर के आगे दन या तन होता है, जैसे परवरदन पालना, गुफ्तन कहना। देखिए ये नई बात आप लोग के सामने आई है अभी। मसदर, मसदर नाम याद रखिए, बोलिए 3 मरतबा। मसदर किसको कहते हैं उसको बता रहे हैं। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने, जिससे, मसदर याद हो गया ना?
क्या पूछेंगे हम कल? शनिचर को पूछा जाएगा मसदर। मसदर किसको कहते हैं? मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। ये तुम लोग का भी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आगे अभी बताएंगे तो हल्का हो जाएगा। दूसरे लफ्ज बने, इतना खाली याद रखो। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। अब आगे देखो, फारसी में मसदर की पहचान क्या है ना, उसको बता रहे हैं। मसदर कौन सा लफ्ज मसदर है, कैसे पहचानेंगे? जब फारसी पढ़ेंगे आगे तो मसदर कौन सा लफ्ज है, क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो उसी को बता रहे हैं। मसदर की पहचान फारसी में ये है कि मसदर जो भी लफ्ज होगा उसके आखिर में दन या तन होगा। दन या तन होगा। जैसे आगे देखो, परवर्दन, दन है ना, गुफ्तन तन है ना। परवर्दन का उर्दू माना हो गया पालना। फारसी का परवर्दन के माने, फारसी का पालने को जब बोलेंगे फारसी में तो क्या बोलेंगे? परवर्दन। परवर्दन के माने उर्दू में पालना। और कहना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहना, कहना का फारसी गुफ्तन। तो ये देखो, गुफ्तन भी मसदर है और परवर्दन भी क्या है? मसदर है। और उर्दू में जब कोई मसदर बोला जाएगा तो उसके आखिर में ना होता है। क्या होता है? ना होता है। जैसे कहना, पालना, रहना, खाना, पीना, है ना। तो ये उर्दू में होता है ना, लेकिन फारसी में होगा दन या तन होगा। दन या तन होगा। जैसे देखिए, मसदर से जो फेल निकलते हैं उनकी 6 किस्में हैं। मसदर ही से जो है ना फेल निकलते हैं। मसदर एक इसम है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। मसदर क्या है? इसम। यानी जबान से जो हम अल्फाज अदा करते हैं, थोड़ा सा इसको एक झलक समझ लीजिए। उसको कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। उसकी 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। जो हम बोलते हैं तो या तो किसी का नाम बोलेंगे, किसी का किताब बोलेंगे, कलम बोलेंगे, शबाना बोलेंगे, आफिया बोलेंगे, जो भी बोलेंगे इसको इस्म बोलते हैं। ये नाम है ना, नाम को क्या बोलते हैं? इस्म। या तो कोई काम के बारे में बोलेंगे, है ना, खाना खा लिए, पानी पी लिए, है ना, सो गए, पढ़ लिए, ये काम हुआ। ये क्या हुआ? नाम तो नहीं ना हुआ है? कोई क्या बोला, हम खाना खा लिए, तो नाम हुआ कि काम हुआ? तो जबान से जो अल्फाज निकालते हैं या तो वो इसमें होगा या फेल, इसमें होगा, फेल होगा, या कोई हर्फ निकालेंगे, है ना। लिखा हमने कलम से, कलम तो इसमें हुआ, लिखने वाले हम हुए, और से ये हर्फ हुआ। से क्या हुआ? हर्फ। तो जबान से जो अल्फाज हम निकालते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। इसमें होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। इसमें होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। तो फिर फेल की किस्में हैं। देखो, ये तुम लोग को थोड़ा भी भारी लगेगा, इसलिए इतना ही याद रखो। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। मसदर वो है, इतना ही याद रखना। मसदर वो है जिससे दूसरे लफ्ज बने। और मसदर की पहचान फारसी में क्या है? उसके आखिर में जो लफ्ज हम बोलेंगे, मसदर जो बोलेंगे तो मसदर है, कैसे पहचानेंगे? उसके आखिर में दन या तन होगा। उसके आखिर में दन या तन होगा। जैसे परवर्दन, ये फारसी लफ्ज है। परवर्दन क्या लफ्ज है? हाँ, उसके माना होता है पालना। और गुफ्तन, ये भी फारसी लफ्ज है। गुफ्तन क्या है? फारसी लफ्ज है। इसके माने कहना। समझ गए ना? ठीक है, चलिए, अल्लाह कबूल फरमाए। कैसा लग रहा?